Good morning, all of you. Thanks to join our online classes. This is Didi Sir present here to teach you English. So before to start up my class, I just want to tell you one thing that borrowed feathers don't make fine birds. अगर कोई चिड़िया कुछ पंख उधार में ले आए और वो अपने पूंछ में लगा ले तो वो एक सुंदर चिड़िया नहीं बन सकती। तो इसी के ऊपर आज हमारा एक टॉपिक है, इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर है बोरोड फीदर्स। तो हम आज जानेंगे कि कैसे किसी से उधार लिया हुआ चीज से हम खुद को बेहतर नहीं बना सकते, खुद को सुंदर नहीं बना सकते। इसी टॉपिक में आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी चीज को। So let's start to read about the borrowed feathers. So before to start of this chapter, I just want to narrate the story briefly. This is a story about a crow. He borrowed some peacock feathers and attached them to his plumage and tried to be a beautiful bird. So let's read this chapter and analyze what the crow tried to prove himself and what he learned at last. So here I just want to tell you the meanings of this chapter, that is borrowed feathers. Borrowed, it means to take something from someone. It means to take something from someone for some time with the intention of returning it. To take something for someone It means borrowed means to take something from someone for some time with intention to returning it. मतलब उधार, इसको हम बोल सकते हैं उधार, कि कोई चीज किसी से लेकर आना कुछ समय के लिए और वापस उसको लौटा देना। नेक्स्ट वन इज योर feathers. Feathers means any of the flat plumage growing from a bird skin. Feathers means any of the flat plumage growing from a bird skin. Feathers means any of the flat appendage growing from a bird skin. इसका मतलब है पंख। तो borrowed feathers का मतलब हो गया उधार लिया हुआ पंख। तो इसी चैप्टर को अब हम पढ़ने वाले हैं। So take a screenshot of this meaning and later you will write on your copy. So let's start our chapter. So look at your book. I will just read the book and explain you in front of. I will read the chapter and explain you. Once there lived a crow in the forest near a king's palace. तो एक समय की बात है, एक कौवा एक राजा के महल के पास वाले जंगल में रहता था। Every day he would perch on the bench of the highest tree and watch the peacocks in the palace garden. So वो चिड़िया उसी जंगल के सबसे बड़े एक पेड़ के ऊपर बैठता था और राजा के महल में जो गार्डन था उसी गार्डन में कुछ मोर रहते थे, उनको वो देखता था।
हाउ ब्यूटीफुल दे आर, ही वुड वंडर, और सोचता था, वो आश्चर्य से ये सोचता था कि कितने सुंदर है ये चिड़िया। If only I had feathers so bright and colorful, वो सोचा था कि अगर मेरे पास इतना सुंदर, चमकदार और रंगीन पंख होते, then all the other crows would envy me and I would be the most attractive bird in the forest. वो सोचता था कि अगर इस तरीके का चमकदार और रंगीन पंख अगर मेरे होते तो मैं आज जंगल का सबसे खूबसूरत चिड़िया होता। One day, the crow saw some peacock feathers laying in a corner of the palace garden. तो एक दिन वो देखता है कि कुछ मोर के पंख उसी गार्डन के किसी कोने में पड़े हुए हैं। Suddenly he had an idea. उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आ जाता है। He flew towards the garden. वो गार्डन की तरफ उड़कर चला जाता है। Slyly he stole the feathers and one by one attached them to his ब्लैक प्लूमेज। उसके बाद बहुत चतुराई से, बहुत चालाकी से वो उस पंख को वहां से चुरा के ले आता है और वह उसको अपने पीछे तरफ अपने पूंछ में लगा लेता है। ड्रेस्ड इन हिज न्यू कॉस्ट्यूम द क्रो फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। उसके बाद वो अपने न्यू कॉस्ट्यूम में वापस जंगल की ओर उड़कर चला जाता है। There he made fun of other crows for being so ugly and dull in color. अब वो कौवा बाकी कौवा को चिढ़ाने लगता है, बाकी कौवा को चिढ़ाने लगता है कि तुम लोग कितना गंदा दिख रहे हो, तुम्हारा कलर कितना गंदा है, ये बोल के वो चिढ़ाने लगता है। The other crows grew furious with him and started avoiding him. तो इसी वजह से बाकी जो कौवे थे उसके ऊपर गुस्सा हो गए, उससे मिलना जुलना बंद कर दिए, उसको अवॉइड करने लगे। With him and started avoiding him, he began to feel lonely. उसके बाद उसको अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि अब उसके साथ कोई खेल नहीं रहा है, कोई उससे मिलजुल नहीं रहा है। So he began to feel lonely. He felt that, उसके बाद वो सोचता है कि A beautiful bird like him ought to live in the palace garden. उसके बाद वो सोचता है कि उसके जैसे एक खूबसूरत चिड़िया को तो राजा के महल में होना चाहिए, उसको जंगल में नहीं होना चाहिए। He flew away from the forest to the royal garden. उसके बाद वापस वो जंगल से राजा के गार्डन में चला जाता है। When the peacocks in the palace garden saw the crow dressed up in their feathers, they laughed out at him. जब वो जंगल में, जब राजा के महल में, उसके बगीचे में जो मोर रहते थे, वो लोग उस कौवे को देखते हैं जो कि उन लोगों का पंख पहनकर वहां पे आ गया है, तो वो लोग उसके ऊपर बहुत हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। Flew over to him, उसके बाद they laughed out at him, they flew over to him and plucked out the borrowed feathers. उसके बाद वो लोग, वो मोर लोग उड़कर उस कौवे के पास आके बैठ जाते हैं। The crow was dead. उसके बाद they flew over to him and plucked out the borrowed feathers. उसके बाद वो लोग उसके पास उड़कर आते हैं, pluck out the borrowed feathers, और वो लोग अपना पंख को फिर से वापस उससे छीनकर ले जाते हैं। The crow was badly injured. जब वो चूंच मार के अपना पंख को ले जा रहे होते हैं, उसको बहुत चोट लग जाती है, कौवे को बहुत चोट लग जाता है। He learned his lesson and flew back to the forest. और उसको ये सीख मिल जाता है कि हमें किसी का पंख लेके खुद को बेहतर और खूबसूरत चिड़िया नहीं मानना चाहिए। ये सीख उसको मिल जाता है और वापस वो जंगल को चला जाता है। He realized that he was a crow and wearing peacock feathers would not make him a peacock. उसके बाद उसको ये एहसास होता है कि वो एक कौवा है, अगर वो मोर का पंख पहन भी लेता है तो मोर जितना खूबसूरत नहीं हो सकता, मोर जितना खूबसूरत नहीं बन सकता। So the morals of the story is borrowed feathers don't make fine birds. Borrowed feathers don't make fine birds. अगर किसी से उधार लेके पंख लगा लो अपने पूंछ में तो तुम एक सुंदर चिड़िया नहीं बन सकते।
So let's discuss about the some difficult word of this chapter one after another. Borrowed feathers. The name of the chapter is borrowed feathers. So let's elaborately discuss the meaning of this chapter to analyze this chapter. Once there lived a crow in the forest near a king's palace. Here is a word palace. Palace and place. Palace and place are two different words. Palace means the official residence of a king. The official residence of a king. And place means a particular position in space. A particular position in space. So never be confused about these two words. Palace means the official residence of a king, and place means a particular position in the space. And the spelling of palace is P-A-L-A-C-E, palace, and the spelling of place is P-L-A-C-E, place. So palace means राजमहल को समझाता है, राजभवन को समझाता है, और प्लेस मतलब किसी भी जगह को समझाता है, और पैलेस मतलब राजमहल होता है. तो यहाँ पे है once there lived a crow in the forest near a king's palace. मतलब एक बार एक कौवा राजा के महल के पास वाले जंगल में रहता था. Every day he would perch. यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है perch. Perch. Perch means to sit on the edge of something. To sit on the edge of something. To sit on the edge of something. मतलब to sit on the edge of something मतलब किसी चीज के उसके धार में बैठना या फिर किसी चीज के किनारे पर बैठना. तो आप यहाँ पे एक तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे ये कौवा यहाँ पे बैठा है. तो किसी चीज के धार में बैठना को क्या बोला जाता है? पर्च. So every day he would perch on the branch of the highest tree and watch the peacocks in the palace garden. तो वो कौवा हमेशा क्या करता था? उसी जंगल के एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर बैठकर राजा के गार्डन में देखता था जहां पे कुछ मोर रहते थे. How beautiful they are. वो सोचता था कि वो कितने खूबसूरत है. Beautiful means खूबसूरत. Beautiful means lovely. क्या है खूबसूरत? Lovely. तो वो कौवा हमेशा ये सोचता था कि वो लोग कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं. So how beautiful they are, he would wonder. Wonder means a feeling of surprise. A feeling of surprise. Wonder means a feeling of surprise मतलब आश्चर्य होके सोचना, कुछ सरप्राइज हो जाना. तो सरप्राइज होके मतलब आश्चर्य होके ये सोचता था कि कितने सुंदर है ये चिड़िया लोग, है कि नहीं. So if only I had feathers so bright and colorful. उसके बाद उसको लगता था कि अगर मेरे इस तरीके के कलरफुल, ब्राइट, रंगीन, चमकदार पंख होते, then
All the other crows would envy me and I would be the most attractive bird in the forest. तो यहाँ पे bright means shiny, bright means shiny, चमकदार. Colorful means रंगीन. क्या है? Colorful means रंगीन, having varied colors. Colorful. Having varied colors. तो उनके पंख, मोर लोगों के पंख कैसे थे? बहुत रंगीन थे, मतलब उनका अलग अलग किस्म का कलर उसमें था. तो वो सोचता था कि अगर इस तरीके का पंख मेरा भी होता तो जंगल के बाकी कौवे, वो बाकी जंगल के खूबसूरत चिड़िया मैं बन जाता और बाकी कौवे मुझ पे थोड़ा जलन होता, उनका थोड़ा जलन होता बोल के उसको लगता था. सो ऑल द अदर crows would envy me. Envy means to be jealous of something. To be jealous of something. किसी चीज को लेके जलन होना. That is called envy. मतलब बाकी कौवे को उसके ऊपर जलन होता अगर उसका भी इतना रंगीन और बेहतर मतलब खूबसूरत पंख होता तो. I would be the most attractive bird. Attractive means pleasing to the senses. Attractive means pleasing to the senses. प्लीजिंग टू द सेंसेस. अट्रैक्टिव मतलब क्या है? प्लीजिंग टू द सेंसेस मतलब आकर्षक, जो उनको बहुत खूबसूरत लगता हो, बहुत अच्छा लगता हो, सुंदर लगता हो. दैट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव. तो वो भी एक अट्रैक्टिव बर्ड बन जाता. One day the crow saw some peacock feathers laying in the corner of the palace garden. Corner means corner. Corner means the place, a place where two or more sides meet. A place where two or more sides meet. A place where more sides meet. तो एक ऐसी जगह जहां पे दो साइड्स एक जगह से एक दूसरे से मिलते हैं उसको बोला जाता है कॉर्नर. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो जगह मिल गया है एक जगह पे, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉर्नर. तो किसी कोने में क्या हुआ? कुछ मोर का पंख वहां पे गिरा हुआ उसको दिखाई दिया. सडनली ही हैड एन आइडिया. तो उसके अचानक से उसके दिमाग में ये आइडिया आ जाता है. तो सडनली हियर इज एडजेक्टिव एडवर्ब. इट मींस एक्सीडेंटली. So suddenly he had an idea. He flew towards the garden. उसके बाद उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आ जाता है और वो सीधा जंगल से राजा के गार्डन पे आ जाता है. उसके बाद
एक बहुत अच्छा वर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है। Slyly he stole the feathers and one by one attached them to his black plumage. तो slyly, slyly, slyly means in a cunning and deceitful manner. In a cunning and deceitful manner. Deceitful manner. तो चतुराई से, चुपके से, क्या है? चतुराई से, गुप्त तरीके से या फिर छल से वो क्या किया? वहां से चुरा के, और मोर का पंख चुरा के वहां से वापस आ गया। उसके बाद क्या किया? one by one attach them to his plumage. यहाँ पे और एक वर्ड है plumage. Plumage means a thick bunch of colorful feathers. A thick bunch of colorful feathers. A thick bunch of colorful feathers. मतलब उसको बोल सकते हैं हम पक्षती। क्या है? पक्षती, एक मोटा सा, मतलब मोटा पंख का एक गुच्छा, जिसको बोल सकते हैं हम प्लमेज। ड्रेस्ड इन हिज न्यू कॉस्ट्यूम, यहाँ पे और एक वर्ड आ गया है कॉस्ट्यूम। Costume means a set of clothes. A set of clothes. A set of clothes. मतलब हमारा पोशाक, हमारा कपड़े। तो वो अपने नए कपड़े में, अपने नए परिधान में क्या हुआ? वो द क्रो फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट, वापस जंगल में चला जाता है। देयर ही मेड फन ऑफ अदर क्रोस फॉर बीइंग सो अगली एंड डल इन कलर। तो बाकी कौवे का, वहां पे जंगल में जाके वो बाकी कौवे का मजाक उड़ाता है। तुम कितना गंदा कलर है तुम्हारा, और कितना डल लग रहे हो तुम। इसी तरीके से वो उनका मजाक उड़ाता है। एंड द अदर क्रोस ग्रू फ्यूरियस विथ हिम एंड स्टार्टेड अवॉइडिंग हिम। तो another important word is here, furious. Furious means is here to be very angry. To be very angry मतलब बहुत गुस्सा करना, बहुत गुस्सा करना। नेक्स्ट, he began to feel lonely. उसके बाद वो, उसको अकेलापन महसूस होने लगता है। He felt that a beautiful bird like him ought to live in the palace garden. उसके बाद उसको लगने लगता है कि उसके जैसे एक खूबसूरत चिड़िया को जंगल में नहीं होना चाहिए, उसको तो राजा के गार्डन में होना चाहिए। He flew away from the forest to the royal garden. और एक वर्ड आ गया है यहाँ पे royal. Royal means you're having the status of a king, having the status of a king, मतलब राजकीय। क्या है? राजा के जैसे स्टाटस होना, राजकीय। रॉयल का मतलब तो क्या है? राजकीय। So when the peacocks in the palace garden saw the crow dressed up in their feathers, जब वो कौवे को गार्डन के मोर देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? They laugh out at him. उसके बाद वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसने लगते हैं। And they flew over to him and plucked out the borrowed feathers. उसके बाद वो कौवा के पास चले आते हैं
और उससे अपना पंख को छीन लेते हैं, और जब वो लोग छीनते हैं उससे उसको बहुत बुरी तरीके से उसको चोट लग जाता है। द क्रो वॉज बैडली इंजूर्ड, ही लर्न हिज लेसन एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। उसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसको अपनी किए की सजा मिल जाता है और वापस जंगल में चला जाता है। He realized that he was a crow and wearing peacock feathers could not make him a peacock. उसके बाद उसको ये एहसास हो जाता है कि वो एक कौवा है और मोर का पंख पहनने से वो मोर नहीं बन जाता। So what is the moral of this chapter? The moral of this chapter is borrowed feathers don't make a perfect or fine bird. So write down moral. Borrowed feathers don't make fine birds. Fine birds. So borrowed feathers don't make fine birds. किसी से उधार लिया हुआ पंख से एक सुंदर चिड़िया नहीं बन सकता। हमारे पास भगवान ने हमको जो कुछ दिया है वो हमारे पास बहुत है, उसी से ही हमको खुश रहना चाहिए। हमको और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर और ज्यादा सोचेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा, हमारा ही लॉस होगा। So thank you, and the homework for today's assignment is find out all the verbs of this chapter and write down in your copy. So today your homework is find out all the verbs of this chapter and write down in your copy. In our next class we will discuss about the vocabulary of this chapter, and अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लोग हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको हमारे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।